میرے محترم دوستو، یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کے لیے بطور نظام کے اس کو پسند کرتے ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام امن و آشتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اسلام انسانوں کے جان، ان کے مال اور عزت و آبرو اور اس سے متعلق تمام حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اسلام ایک بہتر معیشت کی نوید سناتا ہے۔ اسلام خوشحالی اور سلامتی کا پیغام ہے، لیکن ہمیں بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ اور 77 سال سے جو قوتیں پاکستان پر مسلط ہیں، ان کو بھی گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ جس وطن عزیز کی بنیاد ہم نے لا الہ الا اللہ سے رکھی تھی، کیا ہم نے لا الہ الا اللہ سے وفا کی ہے؟ وفات دور کی بات، سوچو ذرا، کیا ان حکمرانوں نے لا الہ الا اللہ سے دغا نہیں کی ہے؟ ہم نے اپنے طرز حکمرانی سے اور اپنے فتنہ انگیز ذہنیت سے اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے۔ ہم خدا کے رحمت کے مستحق نہیں ہو پا رہے۔ کچھ سوچنا پڑے گا۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے۔ اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو۔ اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں۔ اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمن آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام
قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ ہم نہ اپنا حق کسی کو دینا چاہتے ہیں اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتے ہیں، لیکن حقوق کی جنگ، اس کی تعلیم مجھے دین اسلام عطا کرتا ہے۔ اور پھر علماء کرام بیٹھے ہیں، اس روایت کو بھی سامنے رکھیں کہ من قتل دون حقہ فہو شہید، کہ جو اپنے حق کے لیے مارا جائے گا اسے بھی شہید کہا جائے گا۔ اس راستے میں قربانی دی جا سکتی ہے۔ میرے محترم دوستو، پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ لوگ آئین کا بھی احترام کرتے ہیں، قانون کا بھی احترام کرتے ہیں، اور آئین و قانون کا احترام اور اس کی پیروی یہ تمام دنیا کی انسانی اقوام کا متفقہ موقف ہے، کوئی اس سے روگردانی نہیں کر رہا۔ لیکن اگر میرے ملک میں قانون نہیں ہے اور قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ ہم اس ملک میں غلامی کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ آزادی کی بات تو ہر ایک آدمی کر سکتا ہے، لیکن جب میں آزادی کی بات کرتا ہوں تو میری 300 سالہ تاریخ، میری پشت پر 300 سالہ تاریخ، وہ میرے اس دعوے کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ آزادی کا سبق سیکھنا ہے تو آؤ ہم سے سیکھو۔ میرے محترم دوستو، یہ اسمبلیاں بنائی جاتی ہیں، یہ عوام کی منتخب اسمبلیاں نہیں ہوتی، اور ہر اسمبلی کے حوالے سے ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ایسی اسمبلی بنانی ہے کہ جس سے ہم یہ قانون سازی کرائیں گے، یہ ترمیم کرائیں گے، یہ تبدیلیاں کرائیں گے۔ چنانچہ آج کی اس پارلیمنٹ سے حکمرانوں نے اور ان کی پشت پر کھڑے طاقتور قوتوں نے اس آئین کا حلیہ بگاڑنے کا سوچا۔ اور میرے دوستو، یہ آج سے نہیں ہے، اس آئین کا مذاق جنرل ضیاء الحق نے بھی اڑایا تھا، اور جنرل ضیاء الحق کا مقابلہ بھی جمعیت کے کارکن نے کیا تھا۔ اس آئین کا مذاق جنرل مشرف نے بھی
उड़ाया था और फिर 18वीं तरमीम के जरिए से इसकी तलाफी की गई। जो कुछ हमने हासिल किया था उस सारी मेहनतों पर पानी फेरने के लिए ऐवान में 26वीं तरमीम लाई गई। मैं इस मौजू पर ज्यादा तफसीली बात नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो इरादे कायम किए थे, तुमने जो धांधली की, तुमने जिस तरह असम्बलियां वजूद पजीर बनाई, तुमने जिस तरह की असम्बलियां मुंतखब कराई, धांधलियां करा के अपनी मर्जी की अक्सरियतें बनाई, तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो जुल्म किया कि अगर हमारे 16 सीटें थी तो वो 8 सीटों पे आ गई कौमी असम्बली में। ये आपका रवश थी कि ये जमीयत वाले ये फिर रुकावट बनते हैं, ये हमसे अपनी मर्जी कराते हैं, तो 16 से भी कम करो इनको। अब हमारे पास 8 सीटें थी, सेनेट में 5 सीटें थी। अल्लाह ने ऐसा फंसाया अल्लाह ने ऐसा फंसाया उनको कि फिर रास्ता निकलने का उनके पास मौजूद नहीं था। जब तरमीम की बात हुई तो मुझे कहने लगे आज ही आज पास कर दी है। मैंने कहा पास तो होता है जब कोई मुसवदा तो होगा, पहले मुसवदा तो बनाओ, फिर हम मुसवदा देखेंगे तो उसमें तुमने क्या गुल खिलाए हैं। तीसरे दिन रात के कहीं 2-2:30 बजे हमें मुसवदा मिला एक काले लिफाफे में। और जब हमने उसका मुताला किया तो वो आईनी तरमीम नहीं थी, वो एक काला नाग था जिससे कौम को डसा जा रहा था। और उस आईनी तरमीम का आगाज आईन के बुनियादी इंसानी हुकूक से था, जिसमें बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल कर दिए गए थे और बराए नाम जमहूरियत और दरअसल मार्शल लॉ इस तरह का एक उसमें तरमीम लाई गई। अदलिया का बेड़ा गर्क कर दिया गया था, उसके अंदर अदलिया को गुलाम बना दिया गया था। और फिर जिस तरीके से उन्होंने असम्बलियों के साथ खिलवाड़ किया, हमने कहा कि आपकी गिनती हमारे वोट के बगैर पूरी नहीं हो रही। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप आइन का हुलिया बिगाड़ सके। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो मुसव्वदा 56 शिकों पर मुश्तमिल था, 56 शिकों पे, हमने उनको पसपा करते 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 उनका मुसव्वदा हम 22 शिकों पर ले आए। एक महीना लगा उस पर। मेरी नींदें जरूर हराम की उन्होंने, लेकिन मैंने भी उनकी नींदें हराम की। वो भी आराम से सो नहीं सके। और फिर एक काबिल कबूल मुसव्वदा बना। फिर हमने उसमें अपनी शिक़े इजाफा की। जब 5 शिक़े हमने इजाफा की तो 22 से 27 शिक़े हो गए, जिसमें हमने सूद के खात्मे का शक उस पर डाला, जिसमें हमने विफाकी शरी अदालत को
ताकतवर और बाइख्तियार बनाया और उसके फैसले को नाफिजुल अमल करार दिलवाया। हमने उसमें अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ कराया और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की सिफारिशात उस पर असम्बली को बहस में लाने को दस्तूरी है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, 8 अरकान के साथ इतनी पेशरफ्त मैं समझता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के और पाकिस्तान के अंदर दीनदार तबके के आरज़ू का मदावा हो सका। नारे तकबीर, जिंदा है जमीयत, ऐवान में जमीयत, मैदान में जमीयत। आप हजरात की कुव्वत थी, और सियासत में कुव्वत लाजिम होती है, कुव्वत के बगैर कुछ नहीं मिलता। फिर बाकी मौके अल्लाह देता है, मेहनत के मौके भी देता है और नतीजे के मौके भी वो खुद देता है। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं जो कुछ आज देख रहा हूं, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ गुज़श्ता रोज, मुझे किसी पार्टी के फैसले से कोई गरज नहीं। वो अपने फैसले के खुद जिम्मेदार हैं, सही फैसला करते हैं, गलत फैसला करते हैं। हाँ, अगर हमसे मशवरा लेंगे तो दियानत के साथ मशवरा देंगे। अल मुस्तशार मुअतमन। लेकिन जब पूरे एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, उस वक्त तो आप उनके लिए रास्ते छोड़ रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, फिर एहसान जतलाते हैं कि हम गोली नहीं चलाना चाहते थे। फिर जब वो डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? सियासी कारकुन थे, 2-4 रोज बैठे रहते तो बैठे रहते। हम इस हवाले से भी हुक्मरानों के इस पुरतशद्दुद रवैये की मज़म्मत करते हैं। हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल है, मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी हासिल है। लेकिन जिस सूबे से आपको शिकायत है कि वहां से यलगार होता है, कोई कहे न कहे, मैं बड़े वाज़े अल्फाज में कहता हूं कि इस सूबे की हुकूमत भी तो तुमने बनवाई थी, वो धांधली भी तो आपने कराई थी। जब ना अहलों को आप हुक्मरानी देंगे तो फिर यही नताइज उसके सामने आएंगे। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ ज्यादती की, तुमने जमीयत उलमा का मैंडेट चुराया, और अब हालात भी काबू नहीं कर सकते। कोई हुकूमती रिट नहीं है, मुसल्लह गिरोह इलाकों पे काबिज होते जा रहे हैं। हुकूमत की कोई रिट मौजूद नहीं। बलोचिस्तान की यही सूरत हाल है कि वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल वो वहां के हुक्मरानों के बस की बात नहीं रही। हमारे अमन कायम करने वाले इदारे वो किस चीज की तनख्वाही ले रहे हैं? सियासी लोगों के कारकुन शहीद होते हैं, वो भी जनाजे उठाते हैं, वो भी कहते हैं हमारे कारकुन शहीद हो गए,
उसूल के लिए शहीद हो गए, नजरिए के लिए शहीद हो गए। आपकी भी दो चार शुहदा आ जाते हैं, आप भी कंधों पर अपने शुहदा उठाए फिरते हैं, आप भी कहते हैं हमारे जवान शहीद हो गए। बताओ आम लोगों में और आपके फराइज में कुछ फर्क भी है या नहीं है? तो मुल्क को संभालना है। ये मुल्क हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है। हम इस मुल्क के अंदर रहते हुए और इस मुल्क को मुस्तहकम करने की जद्दोजहद करते हुए इसके अंदर अपने हुकूक की जंग लड़ेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा पाकिस्तान। मेरे मोहतरम दोस्तों, खत्म नबूवत का मसला आया, 50 साल के बाद एक लंबे अरसे से ये कोशिश हो रही थी कि कादियानियों को दोबारा मुसलमान तस्लीम किया जाए, लेकिन अल्लाह अपने दीन की हिफाजत करता है। ऐसा झटका लगा कि फिर मुझे नोटिस दिया गया कि तुम भी अदालत में आ जाओ। मैंने कहा मैं 72 सालों में कभी जज के सामने पेश नहीं हुआ, पहली मर्तबा आप मुझे जज के सामने क्यों पेश कर रहे हैं? लेकिन चूंकि मसला खत्म नबूवत का था, मैं उसको सआदत समझता हूं। अगर 50 साल पहले हमारे बुजुर्गों ने कौमी असम्बली के अंदर आईनी तरमीम के जरिए इस फितने को गैर मुस्लिम करार दिया था, तो आज हमने इस अदालत में जाकर ये किरदार अदा किया कि इनका काफिर होना और गैर मुस्लिम होना बरकरार रहेगा। इंशाअल्लाह अगले 50 साल क्या सदी तक भी हमने खत्म नबूवत के लिए अदालत में उनकी ऐसी कमर तोड़ी है कि वो दोबारा जल्द सीधी नहीं हो सकेगी। नारे तकबीर, खत्म नबूवत, खत्म नबूवत, जो कादियानियों का यार है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आईनी तरमीम पास होने के वक्त एक कानून भी पास किया गया। वो कानून जो हमारी तहरीक पर पेश किया गया था, इलेक्शन से पहले जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद थी, हम भी मौजूद थे, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, जनाब बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे। तमाम के इत्तिफाक राय के साथ, तमाम जमातों के इत्तिफाक राय के साथ दीनी मदारस के हवाले से एक बिल पर इत्तिफाक हुआ। मदारस के रजिस्ट्रेशन, मदारस के बैंक अकाउंट्स, उस पर इत्तिफाक राय हुआ और वो असेंबली में पहुंच गया। उसकी असेंबली में एक खानगी भी हो गई, लेकिन बीच में किसी कुव्वत ने उसको रोक दिया और उसका हुल्ले बिगाड़ दिया। हमने कहा हम मजीद कानून साजी नहीं मानेंगे, यही रोक दो। मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चलो जिस हद तक भी हो जाए, पास हो जाए। मैंने कहा नहीं, इस तरह अधूरा काम हम नहीं करेंगे। मदारिस की आज़ादी और हुर्रियत ये हमारा नस्बुल आइन है। मदारिस ने कुर्रे अर्ज़ पर इल्हाद का रास्ता रोका है। मदारिस ने
कुर्रे अर्ज पर इर्तिदाद का रास्ता रोका है। मदारिस ने कुर्रे अर्ज और बर सगीर में इस्लामी तहजीब और कौमी और इलाकाई तहजीब का तहफ़्फ़ुज़ किया है। तुम मदारिस का खात्मा करके मगरिब का इस्लाम, अमेरिका का इस्लाम, यूरोप का इस्लाम, और उनको भी लोग मिले होते हैं हर ज़माने में, जिद्दत पसंदी के नाम पर नित नई तशरीहात करते रहते हैं और वो समझते हैं कि हम इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दें और जो मगरिब को मंजूर इस्लाम है वही इस्लाम हम दुनिया में पेश करें। लेकिन मदारस हैं जो इस रास्ते में रुकावट हैं, और मैं ऐलान करता हूं कि मदारस आपको कभी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हुआ ये कि जिस बिल पर इत्तेफाक हुआ था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस इत्तेफाक राय में शरीक थी, और अभी जब दोबारा 26वीं तरमीम का मामला उठा तो हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है। सब्र करो यार, क्या चीख रहे हो तुम। हमने कहा कि इस बिल को भी पास करना है आपने, इस पर इत्तेफाक राय हुआ। मैंने कराची में बलाउल हाउस में पीपल्स पार्टी के साथ 5 घंटे मुज़ाकरात किए और इस बिल पर उनको राजी किया। मैंने लाहौर में आसिफ अली जरदारी साहब की मौजूदगी में, बिलावल भुट्टो साहब की मौजूदगी में, मियां नवाज शरीफ साहब के घर में 5 घंटे की बहस की है उनके साथ, और वहां पर भी हमने इस बिल पर इत्तेफाक कर लिया था। और अब जब पास हो गया तो पास होने के बाद आपने असेंबली से कुछ और बिल भी पास करवाए। जरदारी साहब, आपने उन सब पे दस्तखत कर दिए, उनका गजट हो गया। आज तक दीनी मदारस के हवाले से बिल पर क्यों दस्तखत नहीं हो रहे? और जिस बिल पर तुमने दस्तखत किए हैं उस पर इत्तेफाक राय नहीं हुआ, वो 26वें आईन की रूह के खिलाफ है। तुमने एक तरफ इत्तेफाक राय करके कुछ चीजों से दस्तबरदारी की और कानून के रास्ते से आकर फिर आपने कौम के और आम आदमी के हुकूक पर डाका डाला। ये मुतनाज़ा बिल, उस पर तो आप दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन जिस पर आपने खुद इत्तेफाक किया था आज तक उस पर क्यों दस्तखत नहीं किए जा रहे? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये आपके लिए कोई आसान नहीं होगा इंशाअल्लाह। और जमीयत उलमा इस्लाम पूरे मुल्क में कोने कोने में और दीनी मदारिस मुल्क के कोने कोने में अब उठेंगे और वो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। और जब ये दुनिया इस्लामाबाद की तरफ जाएगी तो तुम्हारा बाप भी हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा। लब्बैक लब्बैक, ऐसे नहीं मदारिस के चौकीदार जरा बोले लब्बैक 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 लब्बैक। इस्लामाबाद अभी चले, हम अभी आपके साथ इस्लामाबाद चलेंगे, अभी रवाना होंगे, अभी चलेंगे। मेरे दोस्तों, हम हर मसले पर हंगामाराई नहीं किया करते। हमारा एहतजाज और हमारा सवाल बड़ा मजबूत और दलील की बुनियाद पर है, और अगर इस पर दस्तखत नहीं होते तो फिर इंशाअल्लाह 8 दिसंबर को जब पेशावर में इस्राईल मुर्दाबाद का नारा लगेगा तो तुम्हारे मुर्दाबाद का नारा भी लगेगा। मुर्दाबाद मुर्दाबाद आप कहेंगे, नाहल हुक्मरान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
लगता है आप मुझसे ज्यादा थके हुए हो। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम एक दीनी और इस्लामी हक के लिए जंग लड़ रहे हैं। मेरा मदरसा दीन इस्लाम का मुहाफिज इदारा है, कुरान के उलूम का मुहाफिज इदारा है, हदीस के उलूम का मुहाफिज इदारा है, फिक़ह के उलूम का मुहाफिज इदारा है। और जिन मज़ामीन को अंग्रेज ने अलीगढ़ मदरसे में निसाब से निकाल दिया था, दीनी मदरसे ने उस निसाब को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। और 1866 से मेरे अकाबिर ने इस मदरसे को कायम करके जिन उलूम को तहफ़्फ़ुज़ दिया था, आज वो एक ताकतवर और तनावर दरख्त बन चुका है। तुम्हारा बाप भी इस दरख्त को अब नहीं काट सकेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। मैं अब भी सोचता हूं कि खुदा करे ऐसी नौबत ना आए, पहले सुधर जाओ, ठीक हो जाओ, अक्ल के नाखून लो और वतन अजीज में इस्लाम के इन किलों पर हमले बंद कर दो, वरना फिर इन किलों से जो जवाब मिलेगा तुम फिर अपने किलों में नहीं ठहर सकोगे। वाह।